जौनपुर में रामनवमी के बाद हिंसा, उपद्रवियों ने दुकानें चलाई, वाहन तोड़े, धारा 144 लागू। झारखंड में रामनवमी के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। जमशेदपुर के शास्त्री नगर में एक धार्मिक झंडे के अपमान के बाद दो गुटों के बीच पथराव के बाद जमकर आगजनी की गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। फिलहाल प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर में शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 स्थित जटाधारी हनुमान अखाड़ा का झंडा उतारने के दौरान झंडे के बांस में मांस का टुकड़ा पाया गया था। यह देखकर हिंदूवादी संगठन भड़क उठे। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। See the incident which took place last night. For that we have arrested around 50 plus miscreants. Police is taking all preventive measures. We have deployed police forces and magistrate at all sensitive locations wherever we see that there could be some problem. We are also having surveillance team with CCTV camera and drone cameras. Now we have done flag march at the spot where the incident took place yesterday. So we are taking all necessary actions, and whosoever is involved in this incident, we will definitely take the strongest action possible. And there are 5 teams who are looking for the miscreants, and we are taking all actions. Can you get the exact reason behind this violence? See, we are looking into it, but as of now, to say the exact reason is not possible because we need to get into details of it. But yes, some altercation took place for some issue, and then people started sloganeering and started shouting slogans from both the sides, and then it resulted in mob pelting stones against each other. Then of course police forces were deployed from earlier also. Then we reinforced the forces, and then situation were taken under control. Arsoning was also reported. How many shops have been set up? No, you can see it's just in front of you. There are 2-3 shops. जो basically they were shops made from thatches. फूस की झुग्गी झोपड़ी टाइप का दुकान था. So उसी में आग लगी है. And apart from that, nothing else. What about prohibitory orders and actions? Prohibitory order. Up to what extent they will remain continued? Prohibitory order is in place. It is right now. It is up to evening, but we are assessing the situation. If need be, we will extend that also. Is there any plan to relax in internet suspension? No, we are assessing the situation. We will assess and then do accordingly. पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के करीबी सहयोगी पपलप्रीत सिंह को अमृतसर से किया गिरफ्तार। पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल ने कहा है कि एक बड़ी सफलता मिली है। पंजाब पुलिस ने आज अमृतसर के कत्थू गंगल इलाके से पपलप्रीत सिंह के रूप में पहचाने गए अमृतपाल सिंह के मुख्य सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी पपलप्रीत सिंह पंजाब पुलिस को 6 आपराधिक मामलों में वंचित था। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟਲ ਕਲੂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਹੇਠ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ गिरफ्तारी जी पेगी एनएसए के तहत वो गिरफ्तारी पेगी। इस तो इलावा ये 6 होर केसिस दे विच वांटेड आ और फर्दर ये जो भी डिवेलपमेंट होर होएगी उहदे बारे दे विच तुहानूं टाइम टू टाइम जिहड़ी है जानकारी दी जाएगी। पंजाब पुलिस ने मानयोग सीएम साहब की इंस्ट्रक्शंस पे बहुत इफेक्टिव काम किया है। इस केस में एक स्पेशल ऑपरेशन जो चल रहा था इसमें हमारे पास वाइटल क्लूज थे जिसमें पपलप्रीत सिंह जो मेन एसोसिएट है अमृतपाल सिंह का उसको पंजाब पुलिस ने खास करके अमृतसर रूरल पुलिस ने कत्थू नंगल एरिया है अमृतसर में वहां से अरेस्ट किया है। पंजाब पुलिस ने इसको एनएसए में डिटेन किया है। इसके अलावा 6 और केसेस इस पे रजिस्टर्ड हैं जो टाइम टू टाइम एज पर लीगल प्रोसेस उस पर काम किया जाएगा बाद में। और इस केस में अभी और फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर की जाएगी। पंजाब पुलिस अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑनरेबल सीएम पंजाब हैज टेकन अ वेरी इफेक्टिव स्टेप। पंजाब पुलिस हैज बीन सक्सेसफुल इन अरेस्टिंग पपलप्रीत सिंह। Purplepreet Singh is main associate of Amritpal Singh. He has been arrested from the area of Kathu Nangal in Amritsar, and Amritsar police under the leadership of Honorable DGP Punjab, they have arrested Purplepreet.
He has been detained under NSA. There are 6 other cases which have been registered against him, and further legal action will be taken as per law and in accordance with law. Any further development in this case or in this matter will be shared with the media soon. Thank you so much. गला रेत कर बुजुर्ग दंपति को उतारा मौत के घाट। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में सीनियर सिटीजन दंपति की हत्या कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में लूटपाट की वजह से हत्या का मामला लग रहा है। पुलिस को आज सुबह इस मामले की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक मरने वाले बुजुर्ग शख्स का नाम राधे श्याम और पत्नी का नाम वीना शर्मा है। राधे श्याम सरकारी स्कूल से बतौर वाइस प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए थे और अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी उम्र 72 साल और वीना की उम्र 60 साल से ज्यादा थी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। कॉल मिली, 2 लोगों का मर्डर हो गया है। इमीडिएटली पुलिस मौके पे पहुंची और जब मौके पे पहुंची तो देखा कि वहाँ पे अंदर वाले कमरे में 2 लोग जो कॉट होती है वहाँ पे लाइंग डेड। और जब कमरे देखे गए तो वहाँ पे सामान सब फैला हुआ था। नीचे ग्राउंड फ्लोर में कमरा और ऊपर एक कमरा, वहाँ पे सामान सब फैला हुआ था। चोरी की गई है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि क्या क्या मिसिंग है। FSL टीम आई हुई है, क्राइम टीम पहुँची हुई है और पुलिस अपना काम कर रही है। CCTV फुटेजेस देखे जा रहे हैं और इमीडिएटली इस पर जो अक्यूज हैं उनको पकड़ा जाएगा। मैम, ये जो दंपति हैं, इसमें जो मेल दंपति हैं, मेल हैं, हाँ, वो रिटायर्ड टीचर बताया जाता है। वो रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल करोल बाग मॉडल बस्ती स्कूल में। हाँ मैडम, रिसेंटली पता ये चला है इन्होंने अपना मकान सील भी किया था और मकान का जो बयानी का जो अमाउंट है वो घर में रखा हुआ था। हाँ, उनको अराउंड 5 लाख रुपीज़ मिले थे, इसमें से 4.5 गायब हो। मैडम, जो एंट्री है वो एंट्री फ्रेंडली एंट्री है, गेट तोड़कर एंट्री की गई है। पीछे इनका जो मेन गेट है वहाँ से एंट्री, पीछे वाले मेन गेट से एंट्री हुई है और हो सकता है कि जैसा उनके बेटे ने जैसे बताया कि वेंटिलेशन के लिए उनका जो कमरे का डोर था वो भी खुला हो सकता है, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ इंक्वायरी एंड उन्होंने लॉक तोड़ा है। मैडम, एक बार इन दोनों दंपति का नाम बता दीजिए, क्या नाम था? जो मेल थे उनका नाम है श्री राधेश्याम जी और फीमेल जो थी वीना और अराउंड 70 ईयर्स। मैम, इंजरी किस तरह की इंजरी है देखने में? अभी तो हमने टच नहीं किया है, बट प्राइमा फेसी दिख रहा है कि गला। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।